بسم اللہ الرحمن الرحیم. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، نکاح کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور ہماری بحث چل رہی تھی سہاگ رات کے تعلق سے. پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے آئی کہ جب سہاگ رات میں شوہر اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہوتا ہے، اس کا اپنا گھر ہے لیکن بیوی اس کے انتظار میں ہے اور وہ اپنے اس گھر میں اپنے اس کمرے میں داخل ہوتا ہے، تو پھر اندر کا ماحول کیا ہونا چاہیے، کیا شکل ہونی چاہیے اور اس سلسلے میں کیا رسم و رواج ہیں جو پائے جاتے ہیں، وہ کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس کے تعلق سے. اور اسی سہاگ رات کے تعلق سے یا لیلۃ الزفاف جسے عربی میں کہتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں مزید آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی آج کے اس درس میں. پچھلے درس میں یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے تعلق سے، یا شوہر کا بیوی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے دعا پڑھنے کے تعلق سے. یہ باتیں پچھلے درس میں آپ کے سامنے آئی ہیں. اب اس کے بعد یہ اس کی نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے اور اسے فرسٹ نائٹ کہتے ہیں، پہلی رات کہتے ہیں. یہاں سے اس کی زندگی کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہے جسے شادی شدہ زندگی کہتے ہیں. پہلی شادی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس پہلی رات کو لے کر کے چاہے دلہا ہو چاہے دلہن ہو، یعنی شوہر ہو یا بیوی ہو، دونوں کے تعلق سے یہ بات ہے کہ دونوں کے من میں، دونوں کی طبیعت میں، ان کے دل میں، ان کے ذہن میں اس رات کو لے کر کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں، بڑی تمنائیں ہوتی ہیں، اور جسے آج کی زبان میں کہنا ہو تو ایکسپیکٹیشن جسے آج کل آپ کہتے ہیں، توقعات جو ہے، تمنائیں، یہ سب کچھ چیزیں ہیں جو ذہن میں آدمی بیٹھا لیتا ہے، ایک تصور بنا لیتا ہے. تو یہ چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، دونوں کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے کچھ اپنے ذہن میں چیزیں اس کے تعلق سے سوچ کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور اس رات کا انہیں بڑی بے صبری سے انتظار ہوتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. تو آج آپ کو اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں ذکر کرنی ہیں جو سماج میں چیزیں پائی جاتی ہیں، معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور ایک مسلمان کو اس سلسلے میں کیا سوچنا چاہیے اور اسلامی لحاظ سے ہمیں کیا چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ کچھ باتیں ہیں جو ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے ہم نے آپ سے کہا کہ اس رات کو لے کر کے لوگ بہت زیادہ
एक्साइटिंग, जिसे आज की ज़बान में आप कहते हैं ना, कि लोगों में बड़ी उमंगें होती हैं, बड़ी तमन्नाएं होती हैं, तरंगें होती हैं, तमन जो है एक्सपेक्टेशन होते हैं, बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं। अब जब रात में दोनों मिलते हैं, तन्हाई होती है, और शौहर और बीवी दोनों जो है तन्हाई के साथी होते हैं, तो अब ऐसे वक्त में क्या चीजें हैं जिनका हमें ख्याल करना चाहिए, और क्या चीजें हैं जो जायज हैं, कोई मसला ही नहीं। तो ये है चीज जो आज के दर्स में आपके सामने पेश कर। तो पहली बात आपके सामने पेश कर दूं इसके ताल्लुक से, शौहर और बीवी का अब ये ताल्लुक है। अब इन दोनों का जो आपसी ताल्लुक है, इस रात को लेकर के आगे भी पूरी जिंदगी है ये। तो अब ये पूरी जिंदगी उनकी क्या है, ये शौहर और बीवी का ताल्लुक, जिसे हम उर्दू में इज़्दिवाजी जिंदगी कहते हैं, और आज की जबान में आप उसे मैरिज लाइफ कहते हैं। तो अब ये एक जिंदगी है, उसकी शुरुआत इसी कमरे से होती है। और आम तरीके से ये बात भी लोग जिक्र करते हैं, और आपने भी बार बार सुना होगा ये, कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज बेस्ट इम्प्रेशन। तो अब इस रात को लेकर के जो बड़ी तवक्कुआत होती है, या जो है बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं, बड़ी तमन्नाएं होती हैं, जिस रात का बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है, अगर जो तवक्कुआत हैं, अगर उसके खिलाफ कुछ होता है तो लोगों को बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अजीब, अरे मैंने क्या सोच रखा था, ये क्या है मामला। तो पहले से आप कोई एक चीज अपने जहन में एक तस्वुर बैठा लेते हैं, तो उसकी परेशानी ये होती है कि अगर उसके खिलाफ कोई चीज होती है ना, तो आदमी बहुत ज्यादा परेशान। हालांकि हो सकता है कि एक नॉर्मल चीज, अगर आदमी उसे ऐसे देखे तो एक नॉर्मल चीज होगी, लेकिन जो पहले से जहन में एक इमेज बना के रखी है, उसके खिलाफ वो पाता है, तो कुछ और ही सोचने लगता है। अरे मैंने क्या सोचा था, ये क्या देखा। इतनी जल्दी ये सब चीजें जो है सोचने की नहीं होती है मेरे। तो हमें इसको बहुत जो है अच्छे तरीके से मसले को हैंडल करना होता है, समझना होता है सबसे। तो अब हमने कहा कि अब दोनों तन्हाई के साथी होने की वजह से अब दोनों में से हर एक की ये जिम्मेदारी होती है कि दूसरे का भरपूर ख्याल रखे और भरपूर साथ दे। यहाँ वो सब चीजें नहीं कि जो है वो लोगों में, जहनों में क्या होता है ना, कि वो जो दोस्त अहबाब होते हैं लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए जो उनकी सहेलियां वगैरह होती है, वो जैसे जिस मिजाज के होते हैं ना, उसी के लिहाज से उनके जहनों में बात डाले रहते हैं। और चूंकि ये मसला इतना जो है यानी हया से जुड़ा हुआ है, कि हमारे नौजवान साथी कभी भी इन मसाइल को पूछ भी नहीं पाते, और डायरेक्ट सवाल करना भी उनके लिए मुश्किल होता है। खास तरीके से लड़कियां तो कोई सवाल किससे करेंगी इस सिलसिले में। अब वो किसी अपनी सहेली से पूछती है, वो करती है, तो वो बातें जो है आपस में चलती रहती है कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, या मेरे जो साथ कैसे हुआ, क्या हुआ। उस रात की पूरी कहानी दूसरों के सामने वो बयान करते हैं। तो सहेली अपनी सहेली के पास, जिसकी शादी हो रही है ना, पूरी कहानी बयान। अब इस लड़की के जहन में क्या होता है कि जैसे था उसके साथ वो मामला इसके साथ भी वैसे ही हो। हालांकि हो सकता है कि इसके शौहर का मिजाज उसके शौहर के मिजाज से बिल्कुल अलग हो। यही मामला जो है लड़कों का भी होता है। दोस्त अहबाब ने जैसे कुछ कहा, वो चीज जहन में बैठा ली, अब जा करके समझिए कि उसी को अब इस जो है तन्हाई की इस घड़ी में वही वो चाहता है कि अब जो है बिल्कुल वैसे ही करे। लड़की का मिजाज कुछ और है। हो सकता है कि इस लड़की का मिजाज उस लड़की के मिजाज की तरह ना हो।
ये सब चीजें हैं, लोगों से सुन करके जो एक्सपेक्टेशन, फिर उसके बाद जो है तवक्कुआत कर लेना, और फिर उसके खिलाफ कोई चीज हो तो उसको फिर बहुत ज्यादा अहमियत दे देना कि मैंने तो ये सोचा था, यहाँ तो ये हो गया। यही से ताल्लुकात की खराबी शुरू हो। अब मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि अब ये आप लोगों की दो आदमी है, आपकी पर्सनल लाइफ है, ये आपकी ये प्राइवेट जिंदगी है, और इसे आपको जीना है। इस्लाम में सिर्फ इतना कह दिया गया कि आप जो है ने निकाह कर लिया है, और इस ईजाब व कबूल के बाद ये लड़की आपकी बीवी और आप उसके शौहर, और अब आप दोनों तन्हाई के साथी हैं, हर वक्त के साथी हैं, लेकिन मतलब कहने का है कि तन्हाई के भी साथी, और तन्हाई में आप दोनों साथ में होंगे। और जो खास शौहर और बीवी का वजीफा होता है, जिसे जिनसी ख्वाहिश कहते हैं, जिसे आप सेक्सुअल जो है आज रिलेशनशिप कहते हैं आज की ज़बान में, तो अब ये जो ताल्लुकात है, जिनसी ताल्लुकात है, इसी को हम कह रहे हैं कि आप तन्हाई के साथी हैं। आप में से हर एक को, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, दोनों को, यानी शौहर को और बीवी को, दोनों को इस बात को समझना है कि ये मेरा शौहर है, और शौहर को ये समझना है कि ये मेरी बीवी है। और हमारा ये ताल्लुक कोई घंटे दो घंटे का नहीं है, बल्कि हमारा ये ताल्लुक अब अल्लाह ताला ने चाहा इंशाअल्लाह तो पूरी जिंदगी का था। घंटे दो घंटे की बात, रात दो रात का मसला नहीं है कि जो है फिर आदमी जो है उसमें कुछ और ही जो है उसका बर्ताव होता है, कुछ और ही सोचता रहता है। तो वैसा कुछ नहीं है ये, इस चीज को जहन में रखना है, और दोनों में से हर एक को ये बात समझना है कि हम अब तन्हाई के साथी हैं। तो जो इस्लाम कहता है तन्हाई के साथी के बारे में, वो ये है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ये पहली नसीहत है जो इस पहलू से आप जहन में रखें, उस रात के ताल्लुक से। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। और ये मसला सिर्फ उसी रात का, चूंकि शुरुआत वहां से हो रही है, इसीलिए ये बात हम उस रात की करते हैं, क्योंकि वहां का जो ये तासुर होता है ना, वो जिंदगी भर फिर कायम रहता है। तो ये पूरी जिंदगी यही है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। क्या मतलब है ये हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना? कि ये औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिक्र फरमाया है। और ये छोटी सी आयत मेरे भाइयों हमें उस रात की पूरी कहानी सुनाती है। और ये छोटी सी आयत हमें जो सेक्सुअल लाइफ होती है शौहर और बीवी की, जो जिनसी ताल्लुकात होते हैं, जो इज़्दिवाजी जिंदगी है उनकी, उस पूरी जिंदगी का ये आयत नक्शा पेश कर रही है। तो सवाल बहुत कुछ करते रहते हैं कि ये जायज़ है, ये जायज़ है, ऐसा कर सकते हैं क्या बीवी के साथ, बीवी ये कर सकती है क्या शौहर? बहुत सवाल करते रहते हैं। सिर्फ आप इसी आयत को समझ लीजिए, बकिया सारे मसाइल हल है। हुन्ना लिबासुल लकुम, ये औरतें तुम्हारे लिए लिबास है, वो अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनके लिए लिबास हो। लिबास का काम क्या होता है? जब तुम उनके लिए लिबास हो, वो तुम्हारे लिए लिबास हो, तो लिबास का काम क्या होता है? उसी पहलू से हमको सोचना। ये तशबीह है, अरबी में इसको तशबीह कहा जाता है। एक तशबीह है, शौहर को जो है वो भी लिबास से तशबीह दी गई औरत के हक में, और औरत को लिबास से तशबीह दी गई है शौहर के हक में। तो ये जो तशबीह है इसका तकाजा क्या है? किस चीज में वो लिबास, लिबास का काम क्या होता है? एक एक चीज को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे।
आप खुद भी जो है उस पर गौर कर सकते हैं। लिबास ये इंसान के सतर को छुपाने का, सतर यानी प्राइवेट पार्ट, उसकी सतर पोशी का काम करता है, जिस्म को छुपाने का काम करता है। लिबास क्यों पहनते हैं? लिबास इसीलिए ना पहनते हैं। लिबास पहनने की तरफ बहुत सारी जो है उसके फवायद है, मैं अलग अलग उसको बयान करूंगा। तो पहला सबसे बड़ा पहली बात ये कि ये लिबास असल में हमारे सतर पोशी का एक जरिया है, सतर पोशी का एक जरिया है, यानी इससे हम अपनी शर्मगाह को छुपाते हैं। तो अब इससे क्या बात समझ में आ गई? नोट कीजिएगा ये एक चीजों को, यही आयत है, मेन बात ये इसी के अंदर है कि अब इससे क्या बात समझ में आती है मेरे भाइयों और मेरी बहनों की शौहर बीवी के लिए लिबास है, बीवी शौहर के लिए लिबास है। यानी अब इनके दरमियान तीसरा कोई लिबास नहीं, ये ही दोनों आपस में एक दूसरे के लिबास है, तीसरा कोई लिबास नहीं। तो जब ये दोनों तन्हाई में हैं, अब इस वक्त इनको जो ये तन्हाई नसीब हुई है, जो इनकी शबे क्या कहते हैं सुहाग रात कह लीजिए, लैलतुल ज़फ़ाफ़ कह लीजिए, इस रात में है, तो अब इनमें से हर एक दूसरे का लिबास। अब ये सवाल करने की जरूरत नहीं है कि हम लिबास उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते। बीवी अपने शौहर को ऐसे देख सकती है कि नहीं देख सकती, शौहर अपनी बीवी को इस तरह से लिबास मुकम्मल उतार करके देख सकता है कि नहीं देख सकता, तन्हाई में उनका बगैर लिबास के मिलना जायज है कि नहीं है, ये सब सवालात नहीं आते। क्यों? यही चीज है, इसको जहन में रख लीजिए कि ये खुद एक दूसरे के लिबास है। अब इनके दरमियान कोई और पर्दा नहीं, बीवी का अपने शौहर को लेकर के कोई पर्दा नहीं, शौहर का अपनी बीवी को लेकर के कोई पर्दा नहीं। और कोई सवाल करने की आपको जरूरत नहीं, खामखा परेशान होकर के इनके पीछे उनके पीछे भागे और सवाल करें ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आपको बस ये समझना है कि हम एक दूसरे के पास। तो ये पहला पॉइंट था जो आपको हमने पेश किया लिबास के ताल्लुक से। जब ये दोनों ही रहेंगे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिबास हैं, तो सिर्फ ये दोनों हैं, तो वहां लिबास की पाबंदी का मसला खत्म हो जाता है। और जब तन्हाई में मिलते हैं तो दोनों बगैर लिबास के मिल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई सवाल करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात इसमें, ये पहला था जो लिबास का जो मामला है कि दोनों एक दूसरे के लिए लिबास है। दूसरी बात, जब लिबास की बात कही जाती है तो लिबास ये इंसान की जिंदगी में उसकी एक हैसियत जीनत की भी है। हमने अभी एक हैसियत बताई कि जो है वो सतरपोशी का काम करता है, शर्मगाहों की हिफाजत का काम, दूसरों की निगाहों से बचाना होता है उसको, वो काम होता है। अब दूसरी चीज क्या है कि इसका काम लिबास का ये जीनत भी है। हुजू जीनतकुम इंद कुल्ले मस्जिद, कुरान की आयत है कि मस्जिद को जाते हैं तो जीनत इख्तियार करके जाओ, कि जीनत ले लो। तो ये लिबास इंसान के जिस्म के लिए जीनत का भी काम करता है। तो असल में शौहर की जीनत उसकी बीवी है और बीवी की जीनत उसका शौहर। जितनी भी ज़ेबो जीनत हमने इख्तियार किया तो सब किसके लिए है? ये शौहर के लिए। बीवी ने जो इस्तेमाल किया तो शौहर के लिए। शौहर जितना भी जो है अपने आप को स्मार्ट और जो है बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा जो है लगने का जो भी उसका मामला है, तो सब की सब किसके लिए?
اس کی بیوی کے لیے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ تو لباس کا ایک کام زینت کا بھی ہوتا ہے۔ تو شوہر کی زینت اس کی بیوی ہے، بیوی کی زینت اس کی جو ہے اس کا شوہر ہے۔ یہ نوٹ کر لیجیے، اس کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے جب اب یہ تنہائی میں مل رہے ہیں تو اب یہ چونکہ ایک دوسرے کی خود زینت ہے تو ان کو کس زینت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب ان کو کسی زینت کی ضرورت نہیں۔ تو اب یہ بیوی جس نے بہت سارے زیور پہن رکھے پہلے سے اور زینت اختیار کر رکھی ہے، تو یہ ساری زینتیں کس کے لیے تھی؟ اس سے پہلے کے لیے تھی۔ اب کیا ہے؟ اب یہ زینت، اب یہ ساری چیزیں اشار کر کے ایک طرف، اب تو یہ دونوں خود ایک دوسرے کی زینت اور تیسری زینت کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ ساری زینت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، اور جب میلان ہو گیا تو اب ساری زینت ایک طرف رکھ کر کے دونوں ایک دوسرے کی زینت۔ شوہر جو ہے ویل ڈریس کس لیے؟ اچھا لگے، تو اس حالت میں بیوی کے پاس گئے، اور جب جو ہے اس حالت میں بیوی کے پاس گئے تو اب یہ ساری زینت بیوی کے لیے تھی۔ اب بیوی کو اٹریکٹ کرنا تھا، خوشبو کا استعمال، ساری چیزیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں وہ سب اس پہ داخل ہیں۔ اب جب پہنچ گئے، دونوں کمرے کے ساتھی ہو گئے، تنہائی کے ساتھی ہو گئے، تو اب ان سب چیزوں کی ضرورت وہاں پہ خاتی۔ اب کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کی زینت، اب دونوں ایک دوسرے کے لباس ہے۔ لباس کا ایک کام زینت کی ہے۔ تیسری چیز، لباس کا ایک کام ہوتا ہے عیب کو چھپانے کا۔ لباس کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے، کپڑا جو ہم پہنتے ہیں تو اس کا ایک اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر اگر کوئی چیز ہے، کوئی داغ دھبا ہے، تو وہ کپڑا اوپر سے اسے چھپا دیتا ہے، وہ لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آتا۔ کپڑا جو ہے اس سے بچاتا ہے۔ تو یہاں جب شوہر اور بیوی کے تعلق سے بات کہی گئی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، تو میرے بھائیوں تنہائی کے ساتھی ہیں، اور اس وجہ سے جسم کے اندر اگر کوئی جسم کے ایسے پارٹ میں جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے، شوہر اور بیوی ہی صرف ایک دوسرے کے ان حصوں کو دیکھ سکتے ہیں یا دیکھتے ہیں، اور ان کو یہ پتا ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے، کہاں کیا چیز ہے۔ تو اب یہ لباس ہے ایک دوسرے کے، تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے لباس چھپاتا ہے ویسے ہی ان کو وہ چیز کو چھپانا ہے۔ یہ کچھ اہم چیزیں ہیں جو نوٹ کر لیں، ان کو چھپانا ہوتا ہے، اس چیز کو یاد رکھنے کے لیے کسی کے سامنے ذکر نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب شوہر اور بیوی یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، ان کا جو تعلق ہے، جنسی تعلق ہے، سیکسول جو ان کے تعلقات ہیں آپس کے، اس کے تعلق سے کوئی بھی بات کسی اور کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں، بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ایک دوسرے کے لباس ہیں، لباس کا کام اسے چھپانا ہوتا ہے، لباس کا کام بیان کرنا نہیں ہوتا ہے۔ آج یہ بھول گئے ہیں لوگ، جو ہے لباس کا جو فیشن بنا ہوا ہے نا، اس میں یہ چیز کو بھول گئے ہیں کہ لباس کا اہم مقصد جو ہے چھپانا ہے، ستر پوشی ہوتا ہے۔ آج جسم کی نمائش اس میں زیادہ ہونے لگی ہے لباس میں۔
تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لباس کا ایک کام جو ہے یہ بھی ہوتا ہے. اگر اس کے جسم کے ان حصوں میں جو عام طریقے سے لوگوں کو نظر نہیں آتے، کپڑے کی وجہ سے چھپے رہتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، تو شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے، بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے کبھی کسی کے سامنے اسے بیان نہیں کرے. اور اسی سے جڑی ہوئی یہ بات بھی ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو تعلقات ہیں ان کے آپس کے تعلقات کی جو گرمی ہے، ان کا جو سیکسول جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ناتا ہے، تعلق ہے، اس کے تعلق سے کوئی بھی بات چاہے کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو شیئر نہیں کریں گے. یہ عام طریقے سے لڑکوں میں ہوتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور لڑکیوں میں ہوتا ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ، جو کہ غلط ہے. اور اس پہلی رات کی کہانی خاص طریقے سے سنی اور سنائی جا رہی ہے. اور میں اس پر خاص جو ہے زور دے رہا ہوں کہ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. ہم نے بہت سارے جگہوں پر دیکھا ہے، جب رات گزر جاتی ہے تو اس کے بعد صبح میں وہ رشتہ دار لوگ ملتے ہیں، سہیلیاں ملتی ہیں، لڑکا جو ہے یہ دوست احباب اور کچھ خاص رشتے ہوتے ہیں جس میں تھوڑی شرم و حیا کا خیال زیادہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ رشتہ دار آ کر کے پہلا جو ہے سوال ہوئی رات میں کیا، لڑکے سے پوچھتے ہیں رات میں کیا ہو، لڑکی سے پوچھتے ہیں آ کر کے رات میں کیا. یہ غلط چیز ہے، چونکہ ہم نے وہ بیان کرنے کا ایک طریقہ بنا لیا ہے نا، تو لوگ پوچھتے بھی. جب یہ بتا دیا جائے کہ نہیں، اس کی کہانی کسی کے سامنے ذکر کرنا جائز ہی نہیں ہے، کوئی چیز بھی اس کی شیئر نہیں کی جا سکتی، یہ صرف ان کا آپس کا تعلق ہوتا بس. بعض جگہوں پہ ہم نے سنا کہ ولیمے کا ذکر نہیں آیا، اس کے بعد ولیمے کا ذکر بھی آئے گا، اسی فرسٹ نائٹ کے بعد ہی ولیمے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ولیمے کے بارے میں یہ سوچ کے رکھا ہے بعض جگہوں پہ کہ وہ جب تک وہ تعلق نہ ہو جائے قائم، اور یہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس تعلق کو قائم کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے، تب تک ولیمہ نہیں ہوتا. اس کے لیے رشتہ دار لوگ، جیسے لڑکے کا معاملہ ہے تو اس کا بہنوئی آ کر کے پوچھ کریں، ایسے رشتے جس میں تھوڑی شرم و حیا کا زیادہ خیال نہیں ہوتا ہے تو تھوڑا منہ پھٹ ہو کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا سالے صاحب، کیا ہوا جو ہے رات میں آپ کامیاب ہوئے نہیں ہوئے. یہ سب چیزیں میرے ایک ساتھی نے یہ بات مجھے بتائی، اور میں اس لیے آپ کو درس میں ایک بات بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہے اس نے اپنی جو ہے یہ بات بتائی کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، رات جو ہے سہاگ رات گزاری بیوی کے ساتھ، اور اس جو ہے مسئلے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے اس، اور اسی لیے میں یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. یہ مسائل ہیں اور اس میں شرمانے کا کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ کوئی جو ہے مسئلہ، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. وہ جو ایک مشفیر ہوتا ہے نا، وہ جو اس کا پورا جو ہے جو چیزیں جو ہے اس رات کو لے کر کے جس طرح کی ایکسائٹنگ جو ہے لوگوں میں ہوتی ہے، اور پہلی جو شادی جن کی ہوتی ہے، اور بہت ساری جو توقعات ہوتی ہیں، خوف سا ایک دل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کر کے کبھی اس طرح کے حالات بھی پیدا کر دیتی ہیں کہ انسان کو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو پاتی. لیکن یہ اس کا معاملہ ہے اور اس کی بیوی کا معاملہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں. ان کو اس سب چیزوں کے بارے میں کسی کے سامنے شیئر کرنا ہی نہیں ہے، کچھ کہنا ہی نہیں. ان کا صرف آپ سے تعلق ہے، وہ کیا کرنا ہے وہ کریں گے، وہ دونوں کریں گے.
इन दोनों का आपस का अब ताल्लुक क्या हो गया है कि अब दोनों एक हैं, पहले दो थे अब एक हैं। अब यहाँ से जो भी करना होगा वो एक समझिए, जो दोनों मिल करके करेंगे। दोनों में से कोई किसी की शिकायत किसी के सामने जा करके इस जो है ताल्लुक को लेकर के नहीं करेगा। और ये कोई बड़ी चीज नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं है ये, लेकिन ऐसा बना के रखा है। कहा कि पूछा बहनों ने, बड़ी शर्मिंदगी हुई, करें क्या। यही सब चीजें हैं जो एक खौफ सा पैदा कर देती है लड़के के दिल में, और अक्सर जो है उसी वजह से उसको उस रात के नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। ये साइकोलॉजी है, कोई बीमारी नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं है। अगर वो नॉर्मल जो है, कोई भी एक्सपेक्टेशन ना हो, कोई भी तवक्कुआत ना हो, कुछ भी जो है चीजें उसके बारे में ज्यादा उसको ये करके ना रखा जाए कि ऐसा है वैसा है, कल को लोग पूछेंगे क्या जवाब, ऐसी कोई चीज ना हो तो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है वो, कोई मसला नहीं होता उसमें। लेकिन इसको कुछ ऐसा बना करके कुछ पैसे कमाने वालों ने पैसे कमाने के लिए भी बना के रखा है। ये ऐसा मसला होता है कि इंसान किसी के सामने जिक्र करते हुए शर्माता है। तो हकीमों ने इसको लेकर के, डॉक्टरों ने इसको लेकर के बहुत पैसे कमाने का जरिया बना लिया है इसको। और खूब खूब पैसे ऐंठते हैं, कुछ भी नहीं होता, आदमी कुछ कमजोर नहीं होता है, वो सिर्फ नफ्सियाती चीज होती है। और उसी वजह से जो है वो परेशान भी होता है, वो खौफ भी होता है, तो उसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाता है। ये खालिस नफ्सियाती चीज, और उसका फायदा ये डॉक्टर लोग उठाते हैं या हकीम लोग ज्यादा इसका फायदा उठाते हैं। तो ये चीज थी मैं जिक्र करना चाह रहा था। सहेलियां आती हैं सुबह सुबह, पूछेंगी क्या हुआ। अब जाहिर सी बात है कि दो में से कोई एक चीज, या तो झूठ बोलो या जो चीज है उसको सही सही बोलो, तो दोनों सूरतें जो है जायज नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के लिबास है, और उस रात के ताल्लुक से कोई भी सवाल करना उनसे जायज नहीं है। ये नोट करके रखना। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसी रात ताल्लुक कायम करना भी जरूरी है, वैसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है प्यार भरी बातें, एक दूसरे के साथ जो है खेलें कूदें, जो है वो रात गुजारें, आपस में बड़ी जो है कुर्बत हो जाए, बड़ी उनसियत हो जाए। रहना अब हमेशा है, कोई ऐसा नहीं है कि बस यही एक रात है उसके बाद जो है मसला ही खत्म। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा था, तो ये चीज को समझाना चाह रहा था कि ये एक दूसरे के लिबास है, उससे ये चीज जुड़ी हुई है। और इसीलिए वो कभी भी उसके बारे में किसी से बयान नहीं करे। और वलीमे के लिए ये जरूरी नहीं है, दूसरे दिन जो वलीमा है तो वलीमे के लिए ये ताल्लुक कायम हो जाना, ये उससे कोई जुड़ी हुई चीज नहीं है। इसके बारे में इसीलिए कोई सवाल नहीं किया जा सकता। अब उसी से जो है कुछ बातें जुड़ी हुई लिबास से मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। तो एक जो है बात थी, ये भी थी, हमने जिक्र कर दिया। पूरी जिंदगी में भी यही मामला है, उसी रात के ताल्लुक से नहीं, कि इनके जो बाहमी ताल्लुकात होते हैं, जो खालिस जिनसी ताल्लुकात होते हैं, उन ताल्लुकात को किसी के सामने जिक्र करना ये जायज नहीं, उनका बयान करना जायज नहीं है। हदीस में सराहत के साथ, बड़ी वजाहत के साथ इससे मना किया गया है। उसके बाद लिबास का और भी काम होता है, तो पूरी जिंदगी से ताल्लुक है, लेकिन चूंकि अभी एक रात है तो अब ये मसला हमने छेड़ा है, तो चाहते हैं कि आज ही के दर्स में वो बातें भी आपके सामने जिक्र कर दें। लिबास का एक काम ये भी होता है कि लिबास सर्दी से बचाता है, ये लिबास गर्मी से बचाता है, ये इंसान को
सुकून पहुंचाने का एक सबब भी है। जब बड़ी सर्दी होती है तो ये लिबास थोड़ी गर्मी पहुंचाता है, और गर्मी पहुंचा करके सुकून जो है बख्शता है। और ये लिबास इसी तरीके से इंसान के लिए गर्मी के मौसम में भी ये लिबास उसके गर्मी से बचाने का काम देता है। अगर सूरज की किरणें, धूप जो है डायरेक्ट पड़ती हैं, तो ये लिबास जिस्म को उस धूप से के नुकसान से बचाने के लिए ये जो है लिबास उसके काम। तो यहाँ एक दूसरे के लिबास हैं, तो ये भी आप जहन में रखें कि अब दोनों में से हर एक की जिम्मेदारी होती है कि दूसरे को सर्दी और गर्मी से बचाएं और उनके सुकून का सबब बने। सर्दी और गर्मी से बचाने का मतलब क्या है? किसी नुकसान से बचाना। और सुकून का सबब बने एक दूसरे के। बीवी शौहर के लिए सुकून का सबब बने और शौहर बीवी के लिए सुकून का सबब बने। कुरान में तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये शादीशुदा जिंदगी के ताल्लुक से इसको बयान किया कि लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम उसके जरिए से सुकून हासिल कर सको। ये शादीशुदा जिंदगी, ये मैरिज लाइफ, ये शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए क्या है? सुकून का सबब है। इससे इनकी जिंदगी में सुकून आना चाहिए। इतनी बड़ी बात होती है कि जब यही शादीशुदा जिंदगी जहर लगने लगती है, सुकून ही गारत हो जाता है। सुकून ही नहीं, सुकून मकसद था। ये दोनों एक दूसरे के लिबास थे, लेकिन वो सुकून ही गारत हो गया। नहीं है सुकून। याद रख लीजिएगा, ये सुकून सबसे पहले कहाँ पैदा होता है? इस तन्हाई की जिंदगी में पैदा होता है सुकून। और फिर यही तन्हाई की जिंदगी का जो सुकून है ना, यही जिंदगी के सुकून में तब्दील होता है। अगर यहाँ सुकून नहीं हासिल हुआ तो फिर जो और जिंदगी है, इसके अलावा जो कमरे के बाहर की जिंदगी है, उसमें भी सुकून नहीं होगा। असल सुकून यहाँ आता है। इसीलिए ये जो दोनों की तन्हाई की जिंदगी है, सेक्सुअल जो उनके आपस के ताल्लुकात है ना, ये बहुत ज्यादा सुकून का सबब बनना चाहिए। और दोनों में से हर एक को ये आजादी दी है शरीयत कि दोनों एक दूसरे के जिस्म से भरपूर तरीके से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, खेल सकते हैं। इसमें भी सवालात करने की जरूरत नहीं होती है। ये खामखा लोग बीच बीच में सवालात करते रहते हैं ना, ये है, ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा। अरे दोनों एक दूसरे के लिबास हो गए, कुछ नहीं है मसला यार। आपके दरमियान कोई पर्दा नहीं है। आपका पूरा जिस्म उसके लिए जो है लिबास है, उसका पूरा जिस्म आपके लिए लिबास है। जो चीज शरीयत में मना की गई है यहाँ पर, सिर्फ उतना ही हिस्सा मना है, बस। बकिया कुछ भी नहीं। ये दोनों एक दूसरे के लिए सुकून का सबब है। कभी बीवी को ये चीज पता नहीं होती है सही ढंग से, कभी शौहर को पता नहीं होती है सही तरीके से। तो अगर जो है शौहर अपनी बीवी के जिस्म से लुत्फानंदोज होना चाहता है, तो ये मना कर देना, ये ऐसा क्यों कर रहे हो? ये शर्म नहीं? तो वैसा नहीं, ये मसला नहीं होता। कभी उल्टा मामला भी होता। शौहर की एक ख्वाहिश होती है बीवी को लेकर के कि बीवी उसके साथ इस तरह से खेले करे। नहीं नहीं, मुझे ऐसा, मैं नहीं कर सकता। मैं तो एक दूसरे के लिबास है।
यहाँ शर्माने का कोई मसला भी नहीं और शर्म आनी भी नहीं चाहिए। जब यहाँ सुकून नहीं होगा तो इसके कमरे के बाहर की जो जिंदगी है उसमें भी सुकून नहीं। ये लिबास है एक दूसरे के और सुकून का सबब। यहाँ तक कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि औरत जब शौहर जो है अपनी ख्वाहिश जाहिर करे तो वो ना नहीं कह सकती। अगर वो किसी काम में मशगूल है, उस जमाने में एक बड़ा अहम काम उसका जिक्र किया गया कि जो रोटियां पकाते हैं तवे पर, तो तवे पर रोटी छोड़ के तो नहीं जा सकती, तो जल जाएगी। उसको भी कहा कि वो छोड़ के जाना है उसको, लेकिन ना नहीं कर। जब शौहर अपने बीवी के जिस्म से लुत्फानंदोज होना चाहता है और ये दोनों एक दूसरे के लिबास है, तो ये गुंजाइश नहीं होती है कि मना कर। कोई खास जो है चीज है वो कर रहा है तो नहीं, ये क्या कर रहा है, ऐसा नहीं, मना नहीं कर सकता। तो फिर सुकून नहीं रहता, सुकून नहीं रहेगा जिंदगी में। और जब वो सुकून नहीं है रात का, तो दिन का सुकून भी नहीं रहेगा। जो जिंदगी और है बाहर की, और भी जो मामलात हैं, हुकूक हैं, सारी चीजें हैं, उसमें भी याद रखिए सुकून नहीं रहेगा। दोनों में से हर एक को आजादी है। जितनी पाबंदी है सिर्फ जो हराम है बस उसको छोड़ करके हर चीज की आजादी है दोनों में से हर एक। और उसी आजादी के साथ रहना भी है कि दोनों एक दूसरे के लिबास है। यही समझना है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, कि तुम उनके लिए लिबास हो, वो तुम्हारे लिए लिबास है। दोनों में अब कोई पर्दा नहीं, कोई मसला नहीं है। तो ये बात थी, जो चौथी बात थी लिबास को लेकर के, हमने आपके सामने जिक्र किया। और हमने आपसे कहा कि ये सुकून का सबब है, इससे आपस का सुकून हासिल होता है। लिबास का एक काम होता है जिस्म की हिफाजत करना, जिस्म की शर्मगाह को छुपाना। वो सब बातें आपके सामने आई। तो उसी लिबास, जब ये कहा गया कि तुम उनके लिए लिबास हो, वो तुम्हारे लिए लिबास है, तो शौहर बीवी के लिए लिबास करे, बीवी शौहर के लिए लिबास करे। उसकी एक पांचवी शक्ल ये है कि अगर कहीं कुछ कमी होती है तो दोनों में से हर एक को सामने वाले की कमी को छुपाना चाहिए। उसे बयान करने के बजाय, या कभी मामूली सी कोई चीज होती है तो उसको और बड़ा करके पेश करने के बजाय क्या है, उसे छुपाना चाहिए। क्योंकि एक दूसरे के लिबास है, पूरी जिंदगी अब इनका मामला रहता है, ये एक दूसरे के लिए ऐसे ही रहेंगे। मैं आपको कुछ मिसालें देके समझाऊं तो शायद और आसानी से समझ में आएगी बात, कि जैसे कभी कोई शख्स बीवी के सामने उसके शौहर की बुराई करे, तो बीवी वो होती है जो अपने शौहर की बुराई नहीं सुन सकती। चे जाए कि वो अपने शौहर की बुराई किसी के सामने, ये तो खैर बिल्कुल ही जो है नहीं हो सकता। होना तो ये चाहिए कि वो लिबास है ना, उसकी लिबास का काम प्रोटेक्ट होना है, बचाना ना है। तो ये लिबास जैसे जिस्म के लिए है ना, इज्जत के लिए भी एक दूसरे के लिबास है। ये बीवी के सामने शौहर के ताल्लुक से कोई भी बात अगर कोई करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। अगर वाकई माने में वो अपने शौहर की बीवी है तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि आप मेरे शौहर के बारे में ये बात कैसे करें, आपको यह हक किसने दिया कि आप बात करो, मेरा शौहर है, मेरे साथ कैसे है, क्या है, तो हमारा आपस का मामला है, आपको हमारे उसमें बात करने का कोई हक नहीं। ये बीवी होती है, ये लिबास है।
ऐसे ही शौहर का मामला भी, अगर शौहर के सामने उसकी बीवी को लेकर के कोई बात करेगी तो शौहर वो होता है जो अपनी बीवी का दिफा करे, डिफेंस करे। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, मेरी बीवी, हमारा आपस का ताल्लुक है, ये हम समझते हैं, लिबास हो उसके लिए तो प्रोटेक्ट करना आपका काम है, उसकी हिफाजत, उसकी इज्जत की हिफाजत। जैसे जिस्म की हिफाजत होती है ना, वैसी इज्जत की भी हिफाजत होती है। किसी की इज्जत का जनाजा निकालने का कोई हक किसी को नहीं है, तो यहाँ भी उसको नोट करके रखना होता है। एक दूसरे के लिबास हैं, उसमें ये चीज भी दाखिल है, उनकी इज्जत की हिफाजत। बीवी अपने शौहर के ताल्लुक से किसी के सामने कभी कोई ऐसी बात न करे, बल्कि अगर कोई बात करता भी है शौहर के बारे में तो फौरन वहां पर उससे टोक दे कि गलत, मेरे शौहर के बारे में आइंदा कभी भी मैं आपसे ऐसी कोई बात न सुनूं, आप गलत कह रहे हैं, मेरे शौहर बहुत अच्छे आदमी। इससे सुकून हासिल होता है। ये है मोहब्बत का तकाज़ा। ऐसे ही जो है शौहर भी अपनी बीवी को लेकर इतना हसास और इतना सेंसियर होना चाहिए। जो लिबास का मामला है वो मामला होना चाहिए। तो ये हमने पांचवी चीज आपके सामने बयान की कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। इसका तकाज़ा क्या है कि दोनों एक दूसरे के लिबास है। उसमें पांचवी चीज हमने आपके सामने बयान की कि दोनों ये एक दूसरे की इज्जत है। किसी एक की इज्जत जाएगी तो लाजमी तौर पर दूसरे की इज्जत पर भी उससे फर्क आएगा, और दोनों को इसका ख्याल करना होता है। एक और बात लिबास के ताल्लुक से, लिबास जितना अच्छा हो, लिबास जितना अच्छा हो, तबीयत को उतनी ही ज्यादा खुशी मिले। ये आप में से हर कोई जान, कभी आप कपड़ा सिलाते हैं तो खास तरीके से लड़कियां जो है कपड़े को जो उनकी चॉइस के लिए, और जो है वो ये कैसा लग रहा है, मेरे जिस्म पर कैसा लग रहा है, देखो ये रंग मेरे लिए कैसा लग रहा है, और उसके लिए घंटों जो है बाजारों के चक्कर लगा सकते हैं। किसके लिए? जो लिबास हम पहने वो हमें जचना भी चाहिए। इसी तरीके से शौहर का भी मामला होता है, दोनों के साथ ये मामला। आप अपने जिस्म के लिए जब कोई लिबास इख्तियार करते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि वो लिबास आपको जचना भी चाहिए और जिस्म पर अच्छा लगना भी चाहिए। जो आपके जिस्म के लिहाज से मुनासिब है उस तरह का लिबास आप चाहते हैं। इसमें आप दूसरों को लेकर के नहीं बात सोचते। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि एक लिबास जो दूसरे के बदन पर अच्छा लगता है लाजमी तौर पर आपके बदन पर भी अच्छा लगे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप जब भी लिबास इख्तियार करते हैं तो अपना ख्याल करते हैं ना। तो यही मामला शौहर और बीवी का होता है लिबास को लेकर के, कि दोनों एक दूसरे के लिबास है। अब ये लिबास जो शौहर शौहर लिबास है बीवी के लिए, अब बीवी के जिस्म के लिहाज से, उसके अपने लिहाज से, उसके लिहाज से ये वो लिबास है जो उसके जिस्म को अब जचता है और उसको इसे कबूल करना चाहिए। ऐसे ही बीवी को भी ये बात जहन में बैठा लेना चाहिए कि ये मेरा, शौहर को भी ये बात जहन में बैठा लेना चाहिए कि ये मेरी बीवी अब मेरे लिए ये लिबास है, मेरे जिस्म के लिए अब यही लिबास है जो मेरे जिस्म को सूट करेगा। अब उसमें दोनों के लिए अगर कहीं कुछ ऐसी गुंजाइश होती है लिबास में कि लिबास थोड़ा छोटा बड़ा हो गया,
ज्यादा ढीला है तो थोड़ा सा टाइट करना है, करते हैं ना ये सब जो है। कभी जो है उसको कहीं कोई चीज है उसमें तो नहीं, इसको थोड़ा सही करना है। ये लिबास के ताल्लुक से ये सारी चीजें होती है, ये सारे मामलात होते हैं। तो ये भी तो ना एक दूसरे के लिबास है ना, तो इनको भी ये काम करना होता है। कभी भी लिबास जो हमने इख्तियार कर लिया है और काफी जो है ख्वाहिशों के बाद, काफी तमन्नाओं के बाद हमें ये रात मुयस्सर हुई है, तो हम अब इसको ऐसे जाय करने के बजाय, अगर कहीं कोई चीज है थोड़ी बहुत जो है, कुछ बीवी के अंदर या कुछ शौहर के अंदर चीज पाई जाती है ना, तो वही तन्हाई में ही उसे हल भी कर देना चाहिए। उस लिबास को थोड़ा दुरुस्त कर लो वहीं पर, जो आपको फिट हो जाए, खत्म बात। अब ये अनफिट होने का मामला जो है ना, ये नहीं आना चाहिए कि नहीं ये लिबास हमको फिट नहीं हो रहा। ये तो बहुत बाद की बात होगी कि जो है हमने कोशिश की कि थोड़ा बहुत जो जरूरत थी उसको सही करने की हमने कोशिश किया, और सही भी, लेकिन कामयाबी नहीं हो रही है, वो सही नहीं हो रहा है, सामने वाला उसको मान करके ही देने को तैयार नहीं है, वो परेशानियां हैं। तो फिर वो जानते हैं कि आखिर में क्या होता है, मैं उसको नहीं बयान करना चाहता। लेकिन इनका आपस का ये है कि एक दूसरे की अगर कहीं कुछ भी इस्लाह की है जरूरत, तो उसे कबूल करते हैं, उसे कबूल करते हैं। ये लिबास का मसला होता है। जैसे लिबास को काट छाट करके जिस्म के मुनासिब कर लिया जाता है, तो हो सकता है बीवी शौहर के लिए लिबास है, ये अपनी जगह पर परफेक्ट हो, लेकिन शौहर के लिए वो मुनासिबत नहीं पैदा हो रही है। लिबास तो शौहर की ना है, ये बीवी शौहर का लिबास है ना, तो शौहर के लिहाज से उसको फिट होना पड़ता है। तो अगर शौहर कुछ चाहता है कि भाई आपके ये मसला है, आप इसे छोड़ दो क्योंकि ये मेरी तबीयत, आदमी की तबीयतें अलग अलग होती हैं, तो वो थोड़ा उसकी तबीयत से मेल नहीं खाता है, तो कंप्रोमाइज करके छोड़ो उसको, फिट हो जाओ उसके जिस्म के। यही मामला जो है शौहर का भी है। शौहर आप लिबास हो ना बीवी का, बीवी के जिस्म के लिहाज से अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत कोई चीज है, कोई मसला है, और बीवी ये कह रही है, आपसे मुतालबा कर रही है, वो बड़ी जो है ख्वाहिश जाहिर कर रही है कि आप थोड़ी सी चेंजिंग लेकर के आओ अपने अंदर, आपके अंदर जो ये चीज पाई जाती है वो बीवी को पसंद नहीं है, तो ठीक है, आप उसकी पसंद के लिहाज से अपने आप को ढाल लेने में ही भलाई होती है। दोनों में से हर एक को बात कह रहा हूं मैं, आपको किसी एक तरफ नहीं कह रहा। जितना मुमकिन हो शरीयत में उसकी गुंजाइश है, कोई मसला नहीं है, किसी हराम चीज के लिए नहीं कोई बात कही जा रही है, जायज चीज के लिए कही जा रही है, तो उस ना थोड़ा सा अपने अंदर चेंजिंग ले आओ। लिबास को आप करते हो काट छाट करके बराबर, तो अपने आप में भी काट छाट करके थोड़ा बराबर कर लो, एक दूसरे के लिबास बन जाओ। ये अहम चीज है, ये सब चीजें जो है पूरी जिंदगी से उसका ताल्लुक है, लेकिन इसकी शुरुआत उसी रात से होती है, वहीं से जो है एक दूसरे को समझना। अगर कोई औरत को परेशानी है, मैं पहले एक बात जिक्र किया था आपसे कि शौहर अगर उसको ख्वाहिश है ना, तो औरत इनकार नहीं कर सकती। ऐसी औरत की ख्वाहिश है तो शौहर को भी उसका साथ देना होता है, दोनों तरफ से मामला है। तो इसमें कभी क्या होता है ना, कोई मजबूरी है, वाकई कोई बीमारी है, परेशानी है, तो इस्लाम के ये भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं होता है कि जो है इन सब चीजों का भी ख्याल नहीं, लाजमी तौर पर उसे नहीं, बहाना ना हो, लेकिन शौहर भी उन चीजों का ख्याल करेगा, और पूरे तरीके से दोनों में से हर एक को इस सिलसिले में आजादी भी है, दोनों एक दूसरे के लिबास। तो ये चंद बातें थी जो हमने आपके सामने जिक्र की। उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम।
इन चीज़ों को नोट रखें। मैंने चंद चीज़ें ही बयान की हैं, वरना अभी लिबास को लेकर के और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। और सिर्फ इस जो है आयत के अंदर इतना ही ज़िक्र किया गया है और इसी में ये सारी बातें पाई जाती हैं। तो पहली रात के ताल्लुक से भी ये जो मसला था हमने आपके सामने पेश कर दिया कि समझ जाएं कि हम दोनों तन्हाई के साथी हैं और यानी तन्हाई के भी साथी हैं और एक दूसरे के जो है लिबास है उसी लिहाज से हमको तन्हाई में रहना है। हमें किसी परेशान होने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी ज़िंदगी का साथ है इंशाअल्लाह। तो दोनों साथ में हम मिल करके इसे गुजारेंगे। बहुत ज़्यादा जो ये एक दूसरे की जो चीज़ें होती है ना बयान करने की, उसका एक नुकसान ये होता है कि जब एक लड़की जो है किसी के सामने बयान करती है कि मेरा शौहर ये है, ऐसा है, वैसा है, उसने जो है पहली रात में मुझे ये दिया, मेरे साथ उसने ये सलूक किया, ऐसा किया। तो अब जो उसकी सहेलियां सुनती रहती है ना, तो उनको भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरी भी शादी होगी तो मेरे साथ ऐसा होगा। अब हो सकता है उसके शौहर का मिजाज कुछ अलग हो, उसने कुछ और जो है उसके लिए सोचा और इसकी उम्मीद हो रहती है। जब वो चीज़ नहीं हुई तो समझती है कि नहीं, फर्स्ट इम्प्रेशन जो है उतना अच्छा नहीं हुआ, शौहर को लेकर के उतना जैसा उसने सोचा था वो चीज़ नहीं। ये सब गलतियाँ यही है। ये बयान करना जो है ये बहुत बड़ी गलती है। कभी भी नहीं बयान करना चाहिए और कभी भी ऐसी कोई चीज़ ज़िक्र नहीं करनी चाहिए। बहरहाल वक्त हो गया है आज के दर्स का, हमने ये बात आपके सामने ज़िक्र की है। अब उसके बाद जो है वो चीज़ आएगी वो है वलीमे का। चूँकि अब इसी के बाद वलीमे का मसला होता है, तो वलीमे के कुछ मसाइल जो आपके सामने इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते से आप पेश करेंगे। आज का ये दर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। एक और मसला होता है लेकिन वो भी आखिर में ही ज़िक्र करेंगे। बाहमी ताल्लुकात में अज़्ल का मसला होता है। अज़्ल जो है यानी ये कोशिश की लड़का ना हो, हमल ना ठहरे, औलाद जी अभी लड़का न जो है या औलाद ना हो या हमल ना ठहरे, अभी प्रेग्नेंट ना हो जो है लड़की, उसके लिए जो कोशिशें होती हैं उसको अज़्ल कहा जाता है। तो वो मसला भी है आपके सामने ज़िक्र करना है, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं। अभी आगे उसको ज़िक्र करेंगे, पहले वलीमे का ज़िक्र आपके सामने आएगा। आज का दर्स हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। 1-2 मिनट बाकी है और नहीं है तो अल्लाह का फज़्ल-ओ-करम है। इंशाअल्लाह फिर आइंदा मिलेंगे।